Give a big round of applause for our West Bengal Judicial Service rank 30, Shruti Singh. Come on, please. And Shruti has become one of my greatest topper once again. तो आज के তোদের যা সেশন listen to her journey because প্রচুর লড়াই করেছে, প্রচুর ফাইট করেছে, she really fought and প্রচুর লড়াই করে আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছে। তো এটা একটা তোদের জন্য বেস্ট মেমোরেবল এক্সপিরিয়েন্স। তোরা তোদের সামনে একজন টপারকে পাচ্ছিস যাদের কাছ থেকে তোরা গাইডেন্সটা ক্যাপচার করতে পারবি। তো আমি আর বেশি কথা বলবো না, বাট বিফোর দ্যাট দিস ইজ জাস্ট আ স্মল টোকেন ফ্রম আস। এটা আমাদের তরফ থেকে একটা গিফট। গিভ আ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्टूडेंट। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अच्छा अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, तुम बात बोलो अपना, व्हाटएवर यू फील लाइक, जो तुमको सही लगे। Hello everyone. So my name is Shruti Singh. I completed my BA LLB from Department of Law, Hazra. How many of you are from Calcutta University Department of Law? Okay. And which year? All of you have completed your degree? No. Okay, so you all are in third or fourth year like that. Okay, so it is actually a great time for all of you to already start preparing, because a lot of what I'm sorry, but unfortunately a lot of what we are not taught at college we have to learn here for our further journey. Okay, so actually I started my preparation in 2020 itself. Okay, it started before the pandemic, and I wanted to take 2020's examination, but I went to several coaching institutions also, but there I was told that because it is a course of at least 18 months, आप इस साल के लिए मत बैठिए, because you will be wasting one of your attempts. Okay, but I was determined कि नहीं, मैं चाहे 3 महीने में ही करूँ, because my preparation started from last of Jan and the examinations normally are held in May, right, every year, not about 2020, before that 2019 and all. So but I was determined कि नहीं, जो भी 3 महीने में ही करना है, पर 3 महीने में ही करके किसी भी तरह निकालूंगी, वो एक एक करके क्लियर होता जाएगा. So according to me the most important thing for anyone who is sitting for any kind of government examination कि आपको वो चीज़ करने का मन होना चाहिए. अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज नहीं करनी है, if it is not your dream, you will not be able to do it, because it is actually something which will drain you if you are not positively taking it. तो आप ये याद रखिए कि आपको किसी और का सपना नहीं पूरा करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद का सपना पूरा करना है, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, और ऑब्वियसली कम्युनिटी को अपग्रेड करना है जिस तरह से भी आप कर सकते हैं. तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी फाइंडिंग सम काइंड ऑफ फॉल्ट्स इन आवर लॉज समवेयर, या फिर कोई भी जो हायर जुडिशियल फ्रेटर्निटी में है उसका कंडक्ट को लेके. सो दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस. ओके, सो okay, should I start from how did I go from pre to okay, actually in the beginning I was kind of lost. Okay, तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप पहले अपनी बुक लिस्ट तैयार करें सिलेबस के हिसाब से, और बुक्स आप लोग के पास मोर और लेस सब रहेंगी, बिकॉज हमारे LLB के टाइम पे जो हमें किताबें लगती हैं लाइक RD गौर for IPC, then तकवानी is the best book for CPC. CPC पढ़ने में आपको तकवानी से बेटर और कोई बुक नहीं हेल्प कर सकती है, और CPC ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो for me personally it was the most difficult subject, because उसमें orders अलग जगह है, rules अलग जगह है, sections अलग जगह, and then there is difference between sections and orders, और अलग अलग तरीके से वो क्यों प्रोवाइड किए गए हैं. CPC is the most confusing part. तो CPC के लिए आप तकवानी अच्छे से फॉलो करिए, एंड बेसिकली जो भी बुक्स हमें स्कूल कॉलेजेस में वो लोग बोलते हैं, नॉर्मली एवरीवेयर इवन इन NLUs द बुक्स आर सेम, तो आप वो किताबें अपनी अच्छे से पढ़िए. और हाँ, आप लोग मुझे 10 साल की किताबें नहीं आती हैं, क्वेश्चन पेपर्स. हाँ सर recommended me LexisNexis, राइट सर, LexisNexis का 10 years का जो भी रहता है. नाउ अगर आप लोग वेस्ट बंगाल का खरीदेंगे 10 years वाला जो रहता है, उसमें आप लोग को
बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस फील होंगे वंस यू कंप्लीटेड योर लेक्सिस नेक्सिस का, बिकॉज दैट इज ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से वो प्रिपेयर करते हैं, मतलब दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज और यूपी उत्तराखंड सब उसमें हो जाएगा। और कंपेरेटिवली आपको ऐसा फील होगा वो किताब करने के बाद कि यहाँ का जो है वो प्री इज़ कंपेरेटिवली ईजियर। और इनफैक्ट आपको प्रिपेयर भी अपने आपको प्रीलिम्स के लिए उसी हिसाब से करना है। द वे दे आस्क क्वेश्चंस इन आर क्या कहते हैं इन क्वेश्चन पेपर, जो भी हमें क्वेश्चंस मिलते हैं बेसिकली उसी हिसाब से आपको अपने आप को प्री के लिए तैयार करना होगा। एंड सर टोल्ड मी कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो यू प्रिपेयर फॉर मेंस। तो मतलब दैट वाज एक्चुअली लाइक लीप ऑफ फेथ, बट लाइक इवन आई हैव फाउंड इट सेंसिबल बिकॉज वाकई में जो प्री रहता है दैट इज व्हाट, दैट इज 200 मार्क्स राइट, बट जो मेंस रहता है दैट इज 1100 मार्क्स। एंड मेंस जो है वो आपको मेंटली नहीं सिर्फ फिजिकली भी निचोड़ देता है, बिकॉज आप घर आओगे जब एग्जाम देके तो दूसरे दिन यू हैव टू अगेन प्रिपेयर फॉर 2 एग्जामिनेशंस, ओके। और घर आने के बाद जब आप 6 बजे रात को घर आ रहे हो शाम को, तो अगले दिन 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। आप घर में आओगे, रेस्ट करोगे, अपने थोड़े दिमाग को शांत करोगे कि आप दूसरी बुक्स निकाल के प्रिपरेशन करोगे। इट गेट्स वर्स जिस दिन आपका पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आईपीसी और सीआरपीसी होता है, बिकॉज सीआरपीसी और आईपीसी आर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड दे आर टेकन एज 1 एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 3 सब्जेक्ट्स व्हेन यू आर कमिंग बैक, ओके। तो उस हिसाब से आपको प्री के पहले से ही मेंस की तैयारी करनी है, और आप देखोगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते कि आपका प्री का प्रेपरेशन हो ही जा रहा है। प्री में बस आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और सारे जो सेक्शंस होते हैं ABCD वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अब की मैं फंसी थी एक बहुत ही क्या कहें, बहुत ही ज़्यादा डिसीविंग क्वेश्चन था वो ग्राम सभा के बारे में सर। हाँ, ग्राम सभा का था, उसमें प्रावधान पूछा गया था विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर ग्राम सभा, और देयर इज 243 मोस्ट प्रोबेबली सब सेक्शन A, 243A, small letter A, okay, that tells you कि ग्राम सभा will exist. Then there is 243 capital A, and that tells you कि ग्राम सभा के पार क्या है। और ऑप्शन में वो स्मॉल लेटर वाला A भी था और बिग लेटर वाला A भी था, और नॉर्मली हम वो छोटे छोटे वाले नहीं देखते हैं, और मैंने वो गलत किया था, मैंने बड़ा वाला A किया था, और बाद में मैंने वहाँ पे रिव्यू भी भेजा। जब when they sent us the answer मैंने रिव्यू भी भेजा कि वो 243 बिग A नहीं, स्मॉल A नहीं, बिग A होगा। तब उन्होंने कहा नहीं, बिग A जो है वो पावर बताता है, एंड देन आई चेक्ड इन माय कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज 243 छोटा वाला A, द स्मॉल लेटर A। तो इस तरह की प्रिसिजन चाहिए होती है फॉर प्रीलिम्स, ओके। तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि आप मेंस के लिए तैयारी करते हुए चलें, और मतलब प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सक रहे हैं आप वो करिए, ठीक। तो उससे आपकी प्रिसिजन आएगी। बहुत सारे आपको कम से कम 10 to 12 क्वेश्चंस तो आपको सेम या सिमिलर मिल ही जाएंगे अगर आप हर साल प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अबाउट प्रीलिम्स, सी आई डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ओके, बिकॉज ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप तभी एक्सेल कर सकते हो अगर आप वो बहुत पहले से कर रहे हो। वो आप लास्ट मोमेंट में अगर खोल रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे विल नॉट आस्क यू कि हु वन ओलंपिक्स मैराथन, वो पूछेंगे कि थर्ड कौन आया, ठीक। या फिर उस साल नहीं, नॉट इफ यू आर टेकिंग फॉर 2020 दे विल नॉट आस्क यू 2020 में कौन जीता, वो लोग पूछेंगे कि इसके 4 साल पहले जो 2016 में हुआ था उसमें कौन जीता था। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सब ऑल एट वंस लेके चलो, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, ओके। इसमें भी सर ने मुझे काफ़ी टिप्स दिए थे विच वर हेल्पफुल, कि देखो इंग्लिश के 30 मार्क्स आप लोग रोज़ प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक आप सुबह उठ के अगर आप प्रेपोजिशंस और ये सब, वो अगर आप डू यू ऑल बिलोंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, मोस्ट ऑफ ऑल, राइट, हाँ, तो फिर आप लोग के लिए एडवांटेजेस होगा काफ़ी। तो आप ये समझ के चलो कि
30 मार्क्स आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईजी हैं. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एकदम डिस्ट्रिक्ट वाले कृष्णनगर मालदा, देयर इंग्लिश बैकग्राउंड इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. ओके, तो अगर आप वहाँ को बिलोंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे 30 मार्क्स है और मेंस में पूरा 100 मार्क होता है इंग्लिश का. तो आपको अपनी इंग्लिश होन करनी है, बिकॉज लॉ सब्जेक्ट्स तो सब कोई पढ़ेगा. दैट्स व्हाट इवन सर टोल्ड मी, लॉ सब्जेक्ट्स एवरीवन विल स्टडी. आपको अपने ऑप्शनल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड वट एवर योर सेकेंड लैंग्वेज इज, बिकॉज लॉ एवरीवन स्टडी. और आपको इन सब में ज़्यादा मार्क्स, आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो. एंड पीपल हु आर स्पेशली फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, यू गाइज हैव ग्रेटर चांस, बिकॉज आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्गर रहेगा ऑलरेडी. तो आप लोग इंग्लिश में, और ये नहीं कि आपका कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ आप छोड़ दें. अगर कोई चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ट्राई टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, ठीक, ताकि आप उसमें तो कम से कम श्योर रहें कि उसमें आपका मैक्सिमम रहेगा. सो आई न्यू कि मेरा जीके और सीए जो है 40 मार्क्स विच कंप्राइजेस 40 मार्क्स इन आर प्री, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा, तो उसको लेके मैंने टेंशन नहीं लिया. व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर दैट इन फैक्ट विच हेल्प्ड मी इन माय 100 मार्क्स वाला मेंस में जो जीके होता है, कि आप जब सुबह उठते हो तो आपको कुछ करने का नॉर्मली मन नहीं करता, लाइक व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, व्हेन यू आर ईटिंग योर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो आप लोग कोई भी यूट्यूब का चैनल खोलो जिसमें IAS के प्रिपरेशंस के लिए वो लोग बहुत सारे जीके वाले वीडियोस और करंट अफेयर्स निकालते रहते हैं. आप वो सब देखो, तो वो सब जब आप देखते रहोगे तो आपको एक अच्छी, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाएगा कि क्या है. और वो अगर आपको यहाँ पर नहीं भी हेल्प करता है प्री में, तो आपको मेंस में डेफिनेटली हेल्प करेगा. इट विल टेल यू कि आप कैसे हर चीज़ को रिलेट करें. जैसे हमसे हमारे मेंस में एक बहुत ही इट वॉज काइंड ऑफ ईजी, बट उसमें आप पॉइंट्स नहीं बना सकते हो अगर आपको आपका बैकग्राउंड एक नहीं है कि अफ्रीका में माल न्यूट्रिशन की इतनी प्रॉब्लम क्यों है. ओके, नाउ हम अब अपने मन में ऐसे बैठे में तो रीजंस बना सकते हैं ऐसे कि ये, बट वो एक दो से ज़्यादा नहीं होगा. हाँ, तो अगर आपने करंट अफेयर्स अभी आप करंटली फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि एरिट्रिया और एथियोपिया में अक्सर ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है. और उसके बाद सूडान का कितना बड़ा पार्ट है उसमें. उसके बाद वहीं पे दुनिया का सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, डानाकील करके कोई एक जगह है, वो भी वहीं पे है. क्यों है? बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर. हाँ, वहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी है कि लोगों को डेवलपमेंट के बारे में आइडिया ही नहीं है. उन्हें बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो वो उसी में क्राइम रेट भी बढ़ जाता है. तो ऐसी जगह में जब WHO भी अपना सामान पहुंचाता है तो वो सब में इक्वली नहीं बढ़ता है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस. इफ यू आर लाइक कंटिन्यूसली कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड इन दिस मैनर, मतलब ये तो बड़े आप कैजुअल मैनर में देख रहे हो, अगर आप खा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, ये सब चीज़ जो आप काउंट भी नहीं करते कि इसमें भी कितना समय जाता है, तो आपका मन करेगा कि आप फ्रेंड्स देख लो, हाउ आई मेट योर मदर देख लो, ये सब, बिकॉज दैट इज द free time which you are giving to yourself. Instead of that you have to tell yourself कि नहीं, देखो 1 साल की बात है, इस समय खाते टाइम ये देख लेते हैं. एंड आई एम श्योर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा धीरे धीरे जब आप जो भी जियो पोलिटिकल चीज़ें दुनिया में चल रही हैं खुद को उससे रिलेट कर पाओगे, तो इवन यू विल फील बेटर कि नहीं ये ज़्यादा नॉलेजेबल है, 1 साल तो यही कर लेते हैं. तो दिस विल हेल्प यू गाइज अ लॉट. ओके, तो आप जीके के लिए इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं. अदरवाइज आप प्रतियोगिता दर्पण, ये बहुत अच्छे से आता है, वीकली नहीं मंथली इसकी एडिशन आती है, आप वो पढ़ते रहो खरीद के अगर आप कर सकते हो तो. और बैरक्स कंटिन्यूसली पढ़ते रहो और मेंस के हिसाब से आप प्रिपरेशन करो तो आपका हो जाएगा, मतलब इसी हिसाब से रहता है. तो हाँ, मतलब दैट इज़ हाउ यू बेसिकली गो अबाउट, दैट इज़ हाउ आई वेंट अबाउट इट. एंड मतलब यही मैं दूसरों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी इसी तरह प्रिपेयर करें. दैट यू हैव टू स्टडी स्मार्ट. हाँ, शेड्यूल बना लीजिए अपना. आप पहले अपना सिलेबस देख लें, उस हिसाब से आप अपनी किताबें खरीद लें, फिर वो किताबें बस ही रख. और जैसे मैंने बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें की थी, स्टिक ऑन पेपर आता है ना, उसमें वो आप लगा दें. और अगर आपको कोई नई नॉलेज मिलती है या फिर दुनिया में कुछ ऐसा नया होता है या फिर कोई सेक्शन आपको दिमाग में याद नहीं हो रहा या फिर आपने किसी से सुना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो आप उसमें नोट करते जाइए. और अगर आपने कभी आपके लाइक इफ़ यू एवर कम अक्रॉस समथिंग विच यू फाइंड इज इम्पॉर्टेंट, डू नॉट leave it कि I will see it later, because then you will forget it. Okay,
वो क्या है, उसके बारे में कहाँ पर क्या लिखा है, लुक इट अप देन एंड देयर, बिकॉज आप देखेंगे जब आप इस तरह कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से रहती है. एंड कीप ऑन रिवाइजिंग. अगर आप आज कुछ पढ़ रहे हैं, डू नॉट लेट इट बी. ओके, दिस वॉज वन ऑफ माई मिस्टेक. ओके, कि हाउ आई स्टडी, कि मैं एक सब्जेक्ट उठाती हूँ और फिर वो मैं 4-5 दिन में पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दूंगी एंड देन आई विल completely move towards second subject. Okay, now this works for some people because मेरे लिए बचपन से ये काम कर रहा है, but it does not work for most of the people. और मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि वो इस हिसाब से पढ़ रहे हों. ठीक, it personally worked for me, but even I understood later, क्योंकि जब हमें रिवाइज करना होता है तब मैंने ये वाला प्रोसेस उठाया था कि आप एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स में अपने आप को डिवाइड करो, उससे आपको बोरियत भी नहीं होगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कीप रिवाइजिंग. If you've studied something today, you revise it tomorrow. Give it half an hour or 1 hour. Just go through the headlines. Okay, whatever is written, what the title, the subtitles, and tell it to yourself कि अच्छा okay इसमें ये था, okay इसमें ये था, इस तरह से. तो आपको डिटेल्स शायद एकदम अच्छे से नहीं आ रहा है, बट उसमें मोर और लेस व्हाट द मैटर इज रिटन दैट यू पीपल विल रिमेंबर. ओके, एंड मतलब मेन से ज़्यादा वो काम आता है. बाकी आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग का प्री का तैयारी हो जाएगा. और इस बार तो प्री का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गया था बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में. आई थिंक इट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन वॉज दैट कि मैनी पीपल फेल्ट दैट इट वॉज ईजियर, द पेपर वॉज ईजियर, बट आई फील कि इस बार बिकॉज ऑफ द कोविड ओनली पीपल हु वर एक्चुअली सीरियस वो बैठे थे एग्जाम में. तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन था वो लाइक हर साल तो कोई भी बैठ जाता था, पीपल हु इवन डोंट प्रिपेयर सेट, बट इस टाइम जो लोग एक्चुअली में सीरियस थे ओनली दे टुक क्या कहते हैं इसका कि कोविड हो सकता है, मतलब उस खतरे में भी लोग आए थे एग्ज़ाम देने. सो दैट इज़ द रीज़न. बट आप लोग अपने तरफ से 100% प्रिपेयर करें और डेफिनेटली एग्ज़ाम देने जाए. अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि एग्ज़ाम है तो अपने आप जो भी आपके प्रोटेक्शन है वो सब लेकर आप लोग एग्ज़ाम देने तो डेफिनेटली जाएँ. बिकॉज आई डोंट थिंक अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है और आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ रहे तो वो अटैम्प्ट आपको वापस मिलेगा, वो आपका अटैम्प्ट चला गया. यू गाइज विल लूज दैट अटैम्प्ट. सो डेफिनेटली ट्राई. और मन में कॉन्फिडेंटली आप अपना जो भी कर रहे हो, चाहे कोई कुछ भी बोले. आई केम अक्रॉस पीपल हु वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पहले से, मतलब दे वर प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम लॉन्ग बैक देन आई स्टार्टेड एंड देन दे वर रिपीटर्स ऑल्सो. तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि मे बी आई डू नॉट सक्सीड, बट देन ओके, if you do not succeed, I hope all of you succeed, but even if you don't, your base will be stronger for the next time. तो आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरे जोर शोर में ही करिए, ज़रा सी भी ढील ना दें, बिकॉज दिस इज़ वंस अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. एक बार हो गया, द नेक्स्ट ईयर यू गाइज विल बी स्टैंडिंग हियर एंड टेलिंग टू द अदर पीपल. एंड आई होप कि आप लोग वो सब ज़रूर करें, बिकॉज आप लोग भी कोरोना के टाइम आए हो यहाँ पर सबको मास्क लगा के क्लास अटेंड करना. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर सीरियस. तो अच्छे से पढ़ाई करिए एंड आई एम ओपन टू टेकिंग अप क्वेश्चंस. Is there any questions which you want to ask? Any questions? যদি কিছু কোয়েশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো. मैम आपने बताया था कि दर्पण को फॉलो करने के लिए बेसिकली, तो दर्पण का अगर हम देखेंगे तो 15 के बाद जो पेजेस आता है उसमें ज्यादातर आपका ब्रॉड टाइप का ऐसे टाइप्स आ जाता है, जिसमें कुछ पोर्शंस इंट्रोडक्शन का पोर्शन तो अच्छा रहता है लेकिन बॉडी में कुछ अलग चीज वो लोग रिलेट कर देते हैं, उसके बाद आता है. तो बेसिकली फर्स्ट पोर्शन और लास्ट पोर्शन में आपका करंट अफेयर्स रहते हैं. तो इतना याद कैसे, मतलब क्योंकि हर महीने में क्या होता है, दर्पण जो भी आता है दिसंबर का दर्पण आपका नवंबर में आ जाता है, ऑलरेडी रिलीज हो जाता है 15 तक. तो इतना चीज याद रखना, मतलब कैसे हम लोग उसको रिवाइज करेंगे? इतना सब चीज़ याद किसी को नहीं रहता है. नोबडी स्कोर्स 200. एग्जैक्टली. हाँ, तो इसका कट ऑफ जैसे इस साल 95 था, तो आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 180. ठीक, उसमें जो भी आएगा. नाउ याद कैसे रखें, इसका एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग. और उसमें जो पॉइंट्स है ना, जैसे वही मैंने कहा कि अगर आप क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करेंगे हर साल तो आपको एक आइडिया तो ज़रूर हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. ओके, अब हाँ, मैं समझ लीजिए आपने कहा कि बीच में बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखे रहते हैं, तो आप मत पढ़िए वो. आपने एक बार पढ़ लिया, अब आपको पता है उसमें क्या लिखा, यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट अगेन. तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, जैसे वर्ल्ड इंडेक्सेस रहते हैं,
हाँ, ये सब में से तो क्या ही पूछेंगे वो लोग ज़्यादा। वो सब में जो डीप क्वेश्चंस रहते हैं वो IAS में रहते हैं, वो इसमें जुडिशियल सर्विसेज में नहीं रहते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं इस इंडेक्स को डिटरमाइन करने के। वो सब IAS के क्वेश्चंस हैं, वो जुडिशियल सर्विसेज में नहीं पूछेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी रैंकिंग पूछेंगे कि फर्स्ट कौन आया, लास्ट कौन आया और इंडिया की रैंक क्या है। मतलब अगर आप इतना ही याद कर ले तो वो बहुत है, और अगर आ जाता है तो गुड लक। Any questions? हाँ, बोलो शीर्ष बोलो। Sir, ma'am, I am from second semester actually. ओके। Ma'am, I have two questions. Actually, first of the three is what should be our approach to crack it after a few years? Should be when we are reading something, when we are reading their acts, what should be our approach to read? Should we do something extra or should we do what is going on? And the next question is, ma'am, we are freshers in law. So whenever we are reading the bare acts or any explanatory books also, the language is a little bit different. So what should we do to be habituated with the language and to make a control over it? Okay. So that means your first question was that how you should prepare for judicial service examinations along with your BLLB, right? এটা ছিল ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, এন্ড দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ওয়াজ যে ব্যারেক্টার ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কি করে কন্ট্রোল করা যায়। Okay, so according to your first question, how to prepare for your judicial services along with whatever is going on at your college. Okay. So you are in second year only right now. Okay. Second semester. हाँ. He's from first year. So you have just entered this. Obviously, it will be difficult for you, but then you have 4 years ahead. Okay, I assure you, if you sincerely keep on studying, whatever is being you are from which college? Kolkata Police Law Institute. Okay, how is the faculty there? Faculty is good, but not as good as the Department of Law. Okay, so you are coming here to cope for your studies, right? Yes. He's actually under my guidance of BLLB. Okay. So over here you will learn whatever you should learn at college. Okay. So I'm telling you, you will not have any difficulty. By the time you reach your 5th year, you will be well versed, because I'm sure everybody faces the similar kind of difficulties when you've just entered the law. Okay, it will definitely be difficult for you, especially to understand bare acts, because we've been told throughout our school life that try to make small sentences. The smaller the sentences, the lesser incorrections. Okay, but over here you will see that after you've read one paragraph, there is one comma. So it is definitely going to be difficult for you right now, but you will keep on studying for 4 more years, so you don't have to worry about that. Okay, by the time you reach your 5th year, you will be able to understand what is written in bare acts, how to read it, how to understand it, how to correlate it, whatever is written in our textbook. Okay, so I think this is probably the answer of your second question. Okay, about your first question, keep studying for your second semester. That is not going to get hampered in any way. Okay, if you are studying for law here for your judicial services, that will only assist you in your upcoming examinations. अभी तो क्या ही तुम्हारे subjects होंगे law के, like if there are 6 subjects, 3 are law and 3 are BA. You are BA 2 are law and 3 are non-law papers. 5 पेपर है मतलब. हाँ, तो फिर तो अभी क्या ही इतना प्रेशर है. Don't pressurize yourself इतना. Study sincerely. I will not tell you to just give everything up. Study sincerely, but do not take a lot of tension. By the time you reach your 5th year, you will be able to understand everything. আর কোনো প্রশ্ন আছে? Any question? Ma'am, which subjects are most important for the examination? Which subjects are most important? Okay, I will tell you. Choose your optionals very wisely. Okay, I did one mistake in choosing my optional, because that time we did not have such guidance. But I asked a lot of people, and they did not take up Muslim law, but they took up partnership.
And sir told me, but by that time I had already taken up my optionals, like I had filled my form, that partnership is better. Okay. Now why I took Muslim law? I thought that in our prelims there are 10 marks totally, completely for Hindu law and Muslim law. Okay, so that if you bifurcate even, that is 5 marks Hindu law, 5 marks Muslim law. Now for those 5 marks, I thought that I will not have to prepare a new subject. I did not take into consideration कि वो 5 सवाल तो मैं 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही समझ जाऊंगी, बिकॉज मुस्लिम लॉ में ज़्यादा इधर उधर होता है नहीं फॉर प्री. और मेंस में ये होता है मुस्लिम लॉ में कि oh my god, there are so many terms. There are so many terms and you have never even heard of those terms, and it is another language in a way. Okay, and the questions they asked from those terms is, and okay, there are 4 kinds of divisions in Muslim law. Okay, one is Shia, one is Sunni, one is Hanabali, one is Shafi'i, and all of them have different laws. Okay, तो अगर किसी एक का वो कौन सा पीरियड होता है, so what is that period after divorce when you cannot I have not read Muslim law wisely. I cannot recall that. Iddat, right, thank you. Iddat period is different in every case. Okay, और उसके बाद Shufa was one chapter which drained me mentally. Okay, because then it has more bifurcations in it. मतलब केवल वो 4 divisions नहीं होते हैं, उसके बाद there is something called preferential thing. Okay, so that is very confusing. And then they have different kind of wills. Oh god, wills part. Mutawali, power of Mutawali. Oh my god. Kiwas. If you choose that subject, you will have to, if you can prepare for that subject, you can definitely prepare for your general knowledge and current affairs. That I'll assure you. Okay, because it means कि आपकी memory already इतनी sharp है कि आप पढ़ लेंगे और आपको याद रहेगा. तो हाँ, मुस्लिम लॉ तो मैं भी अब किसी को recommend नहीं करूँगी. Fortunately मैंने पढ़ लिया और हो गया. बट मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूँगी. अगर आप उसके साथ कोप कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट. मैं नहीं रेकमेंड करूँगी. हाँ, और पार्टनरशिप में ये है कि आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये सब पढ़ा है तो काफ़ी, और आपका पार्टनरशिप एक्ट तो BA-LLB में भी रहा होगा, तो वो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा. बिकॉज उसमें कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ कंपेरेटिवली ईजियर. ओके, तो आप लोग के लिए फिर पार्टनरशिप एक्ट भी मोर और लेस वही रहेगा. उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो वो लोग पूछेंगे ही, और अगर नहीं भी पूछते, कहीं और से ही पूछते, तो आप लोग पढ़े ही होंगे. उसके लिए आपको इतना एक एक शब्द कौन शब्द का मतलब क्या है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो हाँ, आप अपने ऑप्शनल्स वाइजली चूज़ करिए. स्ट्रेंथन द सब्जेक्ट्स दैट यू फील यू आर गुड एट. ओके, ट्राई टू स्ट्रेंथन एविडेंस, CPC, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में आप ठीक ही रहोगे, बाकी सब्जेक्ट्स में सब वैसे ही रहते हैं. मतलब इट इज़ मोर और लेस दैट समथिंग दैट यू कैन वर्क विथ. ओके, बिकॉज एवरीवन विल बी एबल टू वर्क विथ इट. एविडेंस बहुत एसेंशियल हो जाता है बिकॉज मेंस का वो पूरा 100 मार्क्स का आता है. और इस बार तो प्री में भी उन्होंने एविडेंस एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे. लिमिटेशंस अच्छे से करो बिकॉज वो बहुत ईजी है, वो बहुत छोटा है. लिमिटेशन से पूरे 20 मार्क्स वो लोग पूछते हैं प्री में, जो आई थिंक सर इस बार 20 से ज़्यादा हुआ था. नहीं, इस बार 22 सवाल हुए थे. हाँ, 20. थोड़ा एक्चुअली इन एवरीवेयर दे आस्क 20 क्वेश्चंस, बट दिस टाइम इट हैपेंड टू 22. हाँ, 22 हो गए. वही. और लिमिटेशंस में ये है, अगर उसमें आपने कर लिया तो वो आपको 20 मार्क्स तो आप पूरे कर ही लोगे उधर. और उसके बाद मेंस में लिमिटेशन एक्ट इज़ वेरी इजी. तो लिमिटेशन एक्ट अच्छे से करिए. ट्राई टू चूज इट फॉर योर ऑप्शनल्स. एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप अच्छे से करिए क्योंकि दैट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट. अगर वो आप प्री में नहीं कर रहे हो आप वो, तो ऑब्वियसली आप उसमें थोड़ा सा अपना ढील दे दोगे. ट्राई टू कीप एट पार विथ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. मोस्ट प्रॉब्ली यू पीपल विल स्टार्टेड आफ्टर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स के पहले तो आप लोग उतने ही सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे होगे. तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ एक्चुअली स्कोरिंग. उसमें कुछ
टर्मिनोलॉजीज रहते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ Transfer to onboard person, doctrine of election, doctrine of latches, etc. मोर और लेस क्वेश्चंस कम फ्रॉम देयर ओनली. तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आ करिए एंड मोर और लेस आई हैव मेंशन्ड ऑल द सब्जेक्ट्स. और जो भी आपका सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज है, वो आप फर्स्ट लैंग्वेज तो मतलब इंग्लिश ही रहेगा, वो अच्छे से करते रहिए. इंग्लिश तो आप लोग डेफिनेटली करिए, आप लोग रोज़ पढ़िए सुबह उठ के. वो हमारी जो 11th-12th में नहीं होती थी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर वाली बुक, उसमें प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स ये सब रहते थे. ये सब आप रोज़ प्रिपेयर करिए तो हो जाएगा. मतलब हाँ, इंग्लिश प्रिपेयर कर लीजिए सभी. देखिए, इट इज़ नॉट ईजी. यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और सीट्स कितने ही बच्चों को मिल रहे हैं. तो इन दी एंड यू विल हैव टू गिव योर एवरीथिंग, यू विल हैव टू बी योर बेस्ट, यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट. और कोई एग्जामिनेशन ईजी नहीं होगा बिकॉज दिस इज आई विल नॉट कंसिडर दिस इज अ प्रोसेस ऑफ choosing people, this is process of rejecting people because maximum people are getting rejected. Select तो बहुत ही कम हो रहा है. मतलब अगर 26 सीटें हैं तो उसमें से क्या ही है, मतलब what is the percentage. वेस्ट बंगाल, और इस एग्जामिनेशन में सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, उड़ीसा के भी आ रहे हैं, असम के भी आ रहे हैं, त्रिपुरा के भी आ रहे हैं. जिन्हें भी बंगाली बोलने लिखने आती है वो सब आ रहे हैं देने. मतलब यूपी से भी लोग आए थे देने यहाँ पे एग्जामिनेशन, दिल्ली से भी आए थे. मैंने देखा था इंटरव्यू के दिन वो लोग जो वर्णमाला होती है वो सब लेके बैठे थे, पेपर्स लेके बैठे थे. मुझे भी बंगाली बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो इफ़ एनीबडी बिलोंग टू अ नॉन बंगाली बैकग्राउंड प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बंगाली बिकॉज पर्सनालिटी टेस्ट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टेक इट क्वाइट सीरियसली. दे माइट आस्क यू मीनिंग्स ऑफ वर्ड, दे विल गिव यू टू रीड अ न्यूज़ पेपर, उसमें से वर्ड्स के मीनिंग पूछ सकते हैं. उन्होंने मुझसे पूछ लिया था, मैं अटक गई थी, मुझे नहीं आ रहा था, बट देन दे टोल्ड मी टू राइट समथिंग इन बंगाली, तो वो मैंने लिख दिया था. तो मतलब आपकी होल बंगाली पे मोर और लेस ठीक ठाक होनी चाहिए. दे कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट. अगर आपको नहीं आएगा तो वो आपको निकाल ही देंगे बिकॉज नॉलेज ऑफ बंगाली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल बी वर्किंग इन वेस्ट बंगाल. ओके, तो ऐसे ही करके अपना प्रिपरेशंस करते रहिए. आप लोग सब 2021 में ही देने वाले हो, नॉट बिलोंग द पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ऑल ऑफ यू आर टेकिंग एग्जामिनेशंस इन 2021. हाउ मेनी? Most of them are freshers. एकदम फ्रेशर. Most of them are freshers, and 90% students, those who are sitting in front of you at this moment, they have either just completed their LLB degree right now, or 90% of them are belonging from there. They're pursuing BLLB right now. Okay. And eventually, few students are also over here. Those who have not came, they are preparing for first semester itself. Okay. That's some good ambition. Absolutely, because my students are very dedicated towards this, just like you were. They are very dedicated and ambitious towards that. No, sir, I have to achieve this something. And all of them are very hopeful. And I hope that You definitely. today, where you are standing, Sunday will come, or after a few years, all of them will be standing over here. Even I hope the same. Any questions? Any more questions? কেউ জিজ্ঞেস করতে চাইলে করতে পারো. একদম ফ্রি কিন্তু আজকে ওপেন সেশন পুরো. হ্যাঁ, শিওর, বলো. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक मेंस और प्रीलिम्स के लिए तो गाइडेंस मिल ही जाता है कि ऐसे प्रिपेयर करो या क्या कुछ करो. तो आई नो इट्स वेरी अर्ली टू आस्क, लेकिन इंटरव्यू सेशन, हाउ वाज योर इंटरव्यू सेशन लाइक? With अच्छा, them. श्रुति, एखाने আমি শ্রুতিকে तुमको मैं हाँ. थोड़ा बहुत बस स्टॉप करना चाहता हूँ बस, just for few minutes, excuse me, just for few minutes. যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার ইন্টারভিউ হয়, বেসিক্যালি বিফোর হার ইন্টারভিউ ডেট, যেদিন ওর ইন্টারভিউ ছিল, just before that date, last night, she called me up and asked me, sir, I'm feeling very nervous, अब last minute का कुछ टिप्स दे दीजिए. Last minute, एकदम आखिरी मोमेंट का कुछ टिप्स बता दीजिए. I just told her only one thing. একটাই কথা ওকে আমি বলেছিলাম कि श्रुति, खुद से कोई सवाल मत बनाओ. जब इंटरव्यू रूम में तुम जाओगे, खुद से कोई सवाल मत बनाओ. पहले सुनो कि वो क्या आपसे पूछते हैं. First try to learn what they are asking to you, because আমি মুখের উপরই বলেছিলাম যে whatever you are knowing, whatever you know, whatever you don't know, trust me my dear, they are not interested to know about that fact. What they are interested to know that what they have asked you, whether you know about that or not. যেটা তোমায় জিজ্ঞেস করেছিস তুমি সেটা জানো কিনা, সেটা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট. বিকজ রিমেম্বার, দোজ হু আর দ্য পারসনস হু উইল বি টেকিং ইউর ইন্টারভিউজ আর হ্যাভিং মাচ অ্যান্ড বেটার এক্সপিরিয়েন্স দ্যান অল অফ আস.
আমাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্সই নেই, দে আর হ্যাভিং পাস 30 years 40 years of experience, right? তো one high court judge will be sitting, public service commission will be sitting, the chairman, আরেকজন অনেক আদমি बैठता है और एक judicial service officer बैठता है, তো এই তিনজন বসে, they are, trust me my dears, they are having so much experience that তুমি যদি একটা bluff করো না, they will immediately catch you up from there. একটা bluffing answer, they will understand, no, this person is trying to misguide us. So it creates a negative impression in front of the interview people. That's why I just told her only one thing कि श्रुति कोई जवाब नहीं देना है, मुंह से कोई शब्द निकालना ही नहीं चाहिए, पहले सुनो, खुद से सवाल मत बनाओ, पहले सुनो कि वो क्या पूछते हैं, जो आपसे वो पूछते हैं उसका अगर आंसर आपको आता है तो पहले क्लियर कट आंसर दीजिए, नहीं आता है तो बोलिए सॉरी सर आई डोंट नो, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोनो खराब नय थे. If you don't know, tell them directly, sir I cannot recall, no sir I cannot remember, I don't know. Over to you. Okay, so yes, this helped a lot actually, क्योंकि मेरा जो आखिरी सवाल था, they will actually try to, I should not use the word bluff, but they do that, okay, they do that. Like, they will give you a scenario which they will extend to like 5 to 8 minutes. They will tell you one story, a long story, a long boring story, okay, and then they will ask you one question which has got nothing to do with the entire story, okay. So, and they will lead you in the wrong direction, okay. They started my last question, which the member of judicial committee asked me, it was probably the chairman. He asked me, okay, so because I belong to UP, so he was like, okay, so if a man comes from somewhere and marries a person another where, okay, say if a person belonging to UP only comes to West Bengal and marries a woman here, okay, then he will interrupt, okay, then he said, you know Hindu Marriage Act, right? You know Hindu Marriage Act? मैंने कहा yes sir. बोले okay, he marries a woman here, he runs a business here, he has a child here. Now he goes to Orissa for his business. There he finds another woman and marries her. Now his interest is over in that woman. Now he comes back in West Bengal and that woman gets to know about his earlier marriage and she applies for divorce. Okay, now I'm telling this story to you in a very quick manner because even I don't want to be that boring. Okay, so was a very nice man, that I can tell you, but this is their way of selecting people. This is what they will do. So, and then she files for divorce, and then he told me a lot of other intricacies of their divorce and their case, and then he told me, and then he finally admitted that yes, he was married to some other woman, and then he'll ask, you are well versed with the divorce laws? मैंने कहा yes. So then he's continuing. Then he said, okay, then this happened, and then the person dies. Now you will think इतना सब प्रिया चरित्र रच के मर भी गए. And then he'll tell that he had a son from his earlier marriage. Now that son grows up, and now he is asking that man's brothers for partition in the Hindu undivided family. So now you have to think how many laws are coming in play here. Marriage Act, Divorce Act, Property Act, and HUF की partition का कोई अभी तक codified law नहीं है. Okay, so many things. And then he asks me कि the brothers of that deceased is telling no, this person is an imposter. We don't know him. We will not give him any property. We did not have any brother. Our brother did not marry anyone. The question was, okay, now this person, this son of the deceased, now if he wants to bring the judgment where he admitted in his divorce case with the woman in Odisha that yes, he had been married to so and so woman, will it be admissible? Okay, so what is the final question? The final question comes from the Evidence Act. Okay, Admissibility. The admissibility of an admission made in earlier case, whether it is admissible or not. So I told sir, yes, I do not remember the exact section. So I said, it's okay, you don't have to remember the exact
sections. Tell me, will it be admissible or not? मैंने कहा sir, it will be admissible because according to Indian Evidence Act, if a statement has been made by a person in his earlier case, it is admissible. If it is relevant to the present fact and issue, then it can be proved in the court. Then sir said yes, it is in. There are two provisions for that. One is of dying declaration because that person Section died. 32, subsection 1. And then there is another. I think so it's from 40 to 44. So Admissibility of the conclusion. Section 40 to 44 of the Indian Evidence Act. that he only Chapter told me. So and this story was very boring, very boring. So you have to be attentive. Okay, you have to listen to him properly. अब उन्होंने कह दिया कि आपको हिंदू मैरिज एक्ट आता है, आपको हिंदू डाइवोर्स एक्ट आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इतने बड़े बड़े वो नाम ले लेंगे तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना. यू हैव टू कीप द कनेक्टिविटी ऑफ थॉट, द चेन ऑफ थॉट आपको रखते रहना है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू कीप इन माइंड कि उनका फाइनल क्वेश्चन क्या है. उनका फाइनल क्वेश्चन बहुत ही ये था कि वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है कि नहीं है. इतना सारे इवेंट्स को कोई मतलब ही नहीं था. मतलब ही कुड हैव सिंपली आस्क्ड यू, बट अगर वो सिंपली पूछते तो आप बता ही देते, फिर वो उनको आपको इधर उधर करने का मौका नहीं मिलता. ओके, तो ऑलवेज फर्स्ट लिसन व्हाट दे आर आस्किंग अच्छे से और उसके बाद जवाब दो. एंड येस, डेफिनेटली यू हैव टू बी ऑनेस्ट. आंसर नहीं आता है तो सीधे सीधे बोलो. ओके, दिस इज द पर्सनैलिटी टेस्ट. बेसिकली डज नॉट टेस्ट योर नॉलेज. आपकी जो नॉलेज है वो आपके मेंस में प्री में आपने दे दी है. ओवर हियर दे आर टेस्टिंग योर सूटेबिलिटी एज a जुडिशियल ऑफिसर. ओके, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको काम कंपोजर रखना है अपना. उसके बाद आपको अच्छे से धैर्य रख के सवाल सुनना है. एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी टैक्टफुल मैनर. आप बहुत अच्छे से अपना जवाब दीजिए. ये नहीं कि हड़बड़ी में आप कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं. आपको अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जवाब रहता है बट वो हम उस मोमेंट में तुरंत नहीं रिकॉल कर पा रहे, तो यू कैन इवन आस्क देम फॉर सम टाइम, सर आई नो द आंसर, कैन आई प्लीज़ आस्क फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. और अगर आपको आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप बोल दीजिए सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल द आंसर एट दिस मोमेंट. तो ये वैसे बहुत इट इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस आई वुड से. When you enter the hall, they try to make a very homely atmosphere. Okay, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले किया जाता है. Okay, they will ask you your name, your address, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए. But you have to keep this in mind कि they are your seniors, they are far superior to you. अगर वो आपको बोल रहे हैं कि लो पानी पी लो, बिस्कुट ले लो, तो आप ही नहीं बोलोगे हाँ हाँ सर दीजिए, अरे सर बहुत मज़ा आया. नहीं, बोलो थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई एम फुल, थैंक यू सर, हो गया. इतना ज़्यादा फ्री नहीं होना. यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ रहे हो. आपको डरे सहमे नहीं रहना है, बट आपको ज़्यादा ही लाउड नहीं होना है कि नहीं भाई मुझे तो सब आता है, मैं ही सब कुछ नहीं. तो इस तरह से यू विल बी एबल टू डू. Any questions anymore? কারো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে করতে পারো. Feel free to ask whatever you want. Feel absolutely free to ask whatever you want. Any questions? থাকলে বল. Before coming to the session, everybody was like, हमको सारा कुछ पूछना है, इतना कुछ पूछना है. जब इंटरव्यू के टाइम आया तब सब खत्म. हाँ. I'm asking, I'm from Bengali medium, so মানে কিভাবে মানে कैसे मतलब मैं इंग्लिश में फोकस তুই বাংলায় বল না, অসুবিধা নেই বল. আমি বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে বিলং করি, তো আমি জানতে চাচ্ছি যে ইংলিশের উপরে তাহলে কিভাবে হচ্ছে কি মানে নিজের বেসটা আরো ভালো তৈরি করব, যেহেতু এখানে হচ্ছে কি ইংলিশটাও খুব ম্যাটার করে. তো মানে কিভাবে মানে আমি চাই যে এখন থেকে আমি প্রিপেয়ার করতে চাই যাতে আমার পরে গিয়ে কোনো প্রবলেম না হয়. তো প্লিজ একটু হেল্প করুন. ওকে, ইউ আর ইন which year right now? না, you are in which year right now? কোন বছর মানে কি পড়ছিস? ও জানি আমি সেকেন্ড First year. Okay, then you have a lot of time. See, you definitely must have had English in your second language at least. Second language में था English. हाँ. Second language में तो छिलो हाँ. अपना English. Okay. So, do you understand? Are you well versed with Hindi? Should I talk in Hindi? Yeah. हाँ.
आपको इंग्लिश बेसिक्स तो आते ही हैं, पढ़ना लिखना तो आता ही है, आपको बस बोलने में स्ट्रॉन्ग करना है और लिखने का जो तरीका है वो बेटर करना है, यही तो। ओके, तो आपके पास तो पूरे के पूरे 4 साल पड़े हैं, आपके पास 4 साल पड़े हैं। उसके बाद जब आप जिस साल भी आप क्लियर करते हो उसके बाद कम से कम 1 साल आपको लग जाएगा रजिस्टर करने में खुद को, मिनिमम 6 to 7 मंथ्स लग जाएगा खुद को वेस्ट बंगाल बार काउंसिल में रजिस्टर करने को। आप उसके बाद ही ये एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो, ओके, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है कि यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर ऑफ स्टेट बार, ओके। तो रख लो आपके पास करीब करीब 5 साल है। 5 साल में इंसान रशियन भी सीख सकता है, तो आप इंग्लिश तो सीख ही लोगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप अभी से ही इंग्लिश स्टार्ट कर दो, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स लेके पढ़ा करो। नहीं तो आप जिस कॉलेज में हो वो इंग्लिश मीडियम है, कौन से कॉलेज से कर योगेश चंद्र। योगेश चंद्र तो इज इंग्लिश मीडियम ओनली, तब आपको पढ़ना तो इंग्लिश में ही पड़ेगा। हाँ। तो 4 साल में तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो ही जाएगी। बट आप ज़्यादा अच्छे से करो, मतलब यू हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज यू डू नॉट बिलोंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, you will have to work harder than others and I am going to say this very openly। अगर आप BA LLB में चीटिंग करके पास कर रहे हो, जो मोस्ट आप देखोगे कि 99% बच्चे चीटिंग करके पास कर रहे हैं, which because it is very easy to do that। इतना स्ट्रिक्ट तो वहाँ पर होता नहीं है इन्विजिलेशन, और मोबाइल बुक्स बच्चे सब खोल के बैठते हैं और बहुत ख़राब लगता था मुझे देखने में। And I have been ridiculed because I did not belong to that kind of group जहाँ पर लोग cheating करते थे and everybody used to cheat. Okay, so exam time में nobody was around me. In fact, you have to keep your calm even during judicial services examination because you might sit beside someone जो बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहा हो और आपके अंदर से ऐसा होगा कि मैं इतना पढ़ के आई हूँ या मैं इतना पढ़ के आया हूँ और ये इंसान इतनी चीटिंग करके निकल जाएगा। और वाकई में मेरे सामने मैं जानती थी जो लोग चीटिंग किए वो लोग मेंस क्लियर किए बट वो लोग पर्सनालिटी टेस्ट नहीं क्लियर किए। ओके, सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड इट विल पे ऑफ सम टाइम और द अदर। और वो जो बच्चे चीटिंग कर रहे थे ना, उनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था, उनका ये सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट था, ओके। और वो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में चीटिंग कर रहे थे। तो आप ये जान लो कि जो इंसान अभी तक चीटिंग करके भी नहीं कुछ कर पाया उसका क्या ही कभी कुछ होगा। तो आपको अपना काम नहीं लूज करना है, बट रिमेंबर कि आप वो देख रहे हो कि भीड़ में खोया हुआ इंसान नहीं बन जाओ कि सब चीटिंग कर रहे तो हम भी करेंगे, या वो बोल रहा है कि यू आर बिकमिंग अ नर्ड, यू आर नॉट चीटिंग, तो आप उसमें चले जाओ। ठीक है, अगर आपको बातें करनी है लोगों के साथ, आप अपना ग्रुप बनाओ, बातचीत करो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट डू नॉट एवर रिजॉर्ट टू एनी अनफेयर मीन्स, बिकॉज वो आज नहीं तो कल वो दिख ही जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप मेंस क्लियर कर लिया और आपने पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं क्लियर किया, तो आपको फिर से आप टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक, तो आपको नंबर 1 से वापस से स्टार्ट करना होगा, 0 से स्टार्ट करना होगा, जैसे स्नेक एंड लैडर में होता है। तो डू नॉट एवर रिजॉर्ट टू अनफेयर मीन्स। अगर आप अभी से ही फेयरली पढ़ रहे हो, फेयरली अपने एग्जामिनेशंस क्लियर कर रहे हो, तो जो बच्चे आप समझ लीजिए जो वहाँ पे पहुँचे हैं, मोस्ट ऑफ देम BLLB में 5 साल उन्होंने सिर्फ चीटिंग करी है। तो आपका पढ़ाई है 5 साल का और उनका रहेगा मुश्किल से 1 साल का। तो आप लोग बहुत ही क्या कहते हैं, ऑनेस्टली अपने एग्जामिनेशंस दें और पढ़ाई लिखाई करके ही दें। यहाँ के मार्क्स से आप डिसअपॉइंट मत होइए। डेफिनेटली जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आ ही सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट इट डज नॉट डिटरमाइन एनीथिंग। नन ऑफ देम विल बिकम अ जज, यू विल बिकम अ जज। आप जब वहाँ पे बैठ के ऑर्डर दे रहे होगे, वो लोग कहीं पे क्लर्कबाजी कर रहे होंगे, ओके। सो डू नॉट थिंक अबाउट अदर पीपल, डू नॉट थिंक अबाउट मेंटेनिंग अ ग्रुप। दिस इज नॉट योर टाइम टू मेंटेन अ ग्रुप, दिस इज योर टाइम टू वर्क हार्ड to make a future and definitely give other people suggestions how to study. আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আছে কারণ? Anybody want to ask anything? কিছু জিজ্ঞেস করা থাকলে বলো। एक ही दिन में कितना पेपर होगा एग्जाम में? मेरे टाइम में मेंस में एवरीडे 2 पेपर्स थे विदाउट एनी गैप एंड एवरी पेपर इज 3 hours. ओके, सो इट्स फ्रॉम 9 to 12 द फर्स्ट पेपर, 2 घंटे का ब्रेक,
जहाँ पे बैठने की जगह नहीं रहेगी, बिकॉज बहुत लोगों के पेरेंट्स भी रहते हैं, तो दे विल आइदर ऑक्यूपाई द प्लेस फॉर देयर किड्स और दे विल बी सिटिंग देयर. तो आप चाहे खड़े होकर बताओ चाहे बैठ के बताओ, दे विल नॉट लेट यू सिट इनसाइड. ओके, सो इट्स लाइक 2 घंटे का टाइम रहेगा बीच में, चाहे आप खड़े होकर नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करो, चाहे आप इधर उधर घूम के कुछ और करो. दैट 2 hours एंड देन अगेन 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का. सो एक दिन में 2 पेपर और ये एवरी डे होगा, तो यू विल नॉट गेट एनी ब्रेक अनटिल एंड अनलेस आपके जो स्टार्टिंग वाले पेपर्स वो खत्म हो गए हो और आपके ऑप्शनल पेपर स्टार्ट हो रहे हो. तब इफ़ यू आर लकी इनफ यू विल गेट गैप्स. मेरा हिंदू और मुस्लिम एक साथ ही पड़ गया था, तो वो मेरा डिफिकल्टी हो गया था. और लास्ट दिन में तुम्हारा लिमिटेशन वाला हाँ, लिमिटेशन, तो उसके बीच में काफ़ी गैप 2 दिन का गैप मिल गया था तुम्हारा. मिल गया था. तो एनीथिंग एल्स? नो क्वेश्चंस, राइट? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ শ্রুতি. হয়েছে ডাউট ক্লিয়ার? বোঝা গেল কেন স্যার বলেন লিমিটেশন হিন্দু ল পার্টনারশিপ অপশনাল হিসেবে নিতে? বোঝা গেল জুডিশিয়াল অ্যাসপিরেন্টসরা? এই হচ্ছে মেইন গ্যাপ. আর একটা জিনিস যেটা খুব ভালো বলেছে, দ্যাট ইজ দ্য চিটিং, যে ফর্মেশন থেকে কথা বলছিলাম. সি আজকে যদি ধর তুই চিট করিস, চিট করার অপরচুনিটি আমাদের প্রত্যেকের হাতে আছে. ইউ নো দিস ইজ আ ডাবল এজেড সোর্ড. এটা যদি তোর দিকে যায় তাহলে তোর গলা কাটবে, উল্টো দিকে গেলে উল্টো দিকে গলা কাটবে, কিন্তু আলটিমেটলি লসটা নিজের. Because remember one thing, if you are cheating in your examination, which most of the majority people are doing these days due to that advantage of online examination, and আমার বলতে কোনো বাধা নেই যে ঠিক আছে দ্যাট ইজ ওকে, এখন অপরচুনিটি আছে, ঠিক আছে দ্যাট ইজ গুড, বাট ওয়ার্ক অন ইউর কনসেপ্ট. প্লিজ ডেভেলপ ইউর জুডিশিয়াল মাইন্ডসেট ফার্স্ট, বিকজ অ্যাজ আ জাজ হতে গেলে যেটা সব থেকে বেশি প্রয়োজন, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাটিটিউড, বিকজ অ্যাটিটিউড ইজ সামথিং উইচ ম্যাটার্স ইন এভরি কেস. For example, দেখবি মানে eventually, Shruti, how many hours exactly did you study in a regular basis? honestly Approx? speaking, some as much as I could. As much as you could, right? मतलब there was no like 7 घंटे. ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं था. नहीं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. What happened? Let's me tell you a bit interesting story. तुम भी सुनो, तुमको भी अच्छा लगेगा. Last day, that means I'm talking about yesterday. I met one guy. एक लड़का आया था, एक चले लड़का आया था मेरे से मिलने. ऐसी जुडिशियल का तैयारी करना है सर, ऐसे ऐसे करना है आपसे, तो का नाम सुना बहुत, इसलिए आपके साथ रह के हम तैयारी करना है पूरा, आपके साथ पूरा फर्स्ट टू लास्ट. ऐसे अब होता क्या है पढ़ो तो कि हम लोग ना समझ जाते तुरंत कि इतना सालों का एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा तो बन गया है, तो हम लोग देख के ना समझ जाते कि अच्छा ठीक है. तो मैंने बोला कि यार तुम एक बात बताओ, तुम कौन सी कॉलेज से पढ़े? तो उसने कॉलेज का बोला, आई वोंट से बिकॉज इट विल गो इन यूट्यूब, आई डोंट वांट टू मेक अ ब्लफ ऑफ इट. तो उसने बोला अच्छा ठीक है चलो. फिर बोले कि हमने पूछे कि अच्छा बताओ तो ये वाला प्रोविजन में जो हिंदू लॉ का एक्चुअल मेन जो एंटायर एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और या जो भी अडॉप्शन मेंटेनेंस, कौन सी 2 ऐसे लैटिन मैक्सिम है जिसके ऊपर वो आधारित है? The guy was completely stopped. Sir, what is the Latin maxims? And he has done his BLLB from a reputed college of Bengal. আমি জিজ্ঞেস করলাম হিন্দু লয় দুটো স্পেসিফিক ল্যাটিন ম্যাক্সিম বল যেখান থেকে দাঁড়িয়ে যার উপরে হিন্দু লটা তৈরি আছে. And he was like, I don't remember. I said, you have not read. Open your Bear Act of Hindu Marriage Act, Universal Bear Act, open the first page where is the introduction, দেখানে দুটো ল্যাটিন ম্যাক্সিম লেখা আছে. Conjunctic martitet, eminai, este nature and vire tunor consenter in lege una pensona. These were the 2 Latin maxims on which Hindu law was based. And the guy was, sir, मैंने कभी पढ़ा नहीं ऐसे. मैंने बोला इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे था नहीं. नहीं सर, बहुत पढ़ना पड़ता था, बहुत. These are the qualities of a person. যদি মনে হয় প্রচুর পড়তে হচ্ছে, ভালো লাগছে না, चपरासी बन जाओ. चपरासी लोगों का लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं होता यार, पता है तुम्हें? कोई स्ट्रगल नहीं. आएगा जज सब क्या कर रहे हैं सर की क्वेश्चन, दावा खेलছে, চেস খেলছে. अरे ठीक है पांडे जी, लीजिए ना 500 रुपया सबसे मिला दीजिए. हो गया ना? একদিনে যদি 10টা লোক একজন জজের সাথে মিট করতে আসে, হয়ে গেল ওর 5000. মাসে হচ্ছে কত? 1.5, 1,50,000, তার উপরে 50,000 স্যালারি, 2 लाख आराम से गाड़ी बाड़ी खरीद के ऐसे ऐसे करके शादी वादी कर लिया, बहुत बढ़िया. चपरासी बन जाओ. এটা একটা অপরচুনিটি ভাই. এমন কোন লোক নেই পৃথিবীতে যে স্ট্রাগল করে বড় হয়নি. ইউ টেক অ্যান এক্সাম্পল অফ B.R. Ambedkar. I worship him just not because he was a Dalit. He was not a Dalit. He was the most profound man of his country ever. And if I tell you how much degree he had, trust me, আমাদের ক্লাসে কোনোদিন আমরা কেউ কাউন্ট করে শেষ করতে পারবো না how much degrees he had. Regular basis he was being violated and humiliated by his teachers. He was not permitted to sit in the classroom. B.R. Ambedkar के क्लासरूम में बसते देवा होतो ना, बाहर बसते दिते होतो because he was a Dalit. But he didn't care. भाड़ में क्या बेइज्जती, हमको तो बस पढ़ना है. This was his attitude. बोलছিলাম না attitude matters.
যদি স্ট্রাগল করতে না হচ্ছে, দেখ আজকে শ্রুতি যে জায়গাটায় পৌঁছেছে সেটা একদিনে হয়নি, ইট টুক আ লং টাইম। রাতের পর রাত ইভেনচুয়ালি ওয়াইল শি ওয়াজ অলওয়েজ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ মি, তো আমি জানি বলে বলছি, রাতের পর রাত এরকম গেছে, এক্সাম টাইমে ঘুমোয়নি, ঠিকঠাক করে খায়নি, এরকম সিচুয়েশনে গেছে, বিকজ শি ওয়াজ অল দ্য টাইম কন্ট্যাক্টেড উইথ মি, অলওয়েজ আমার সাথে কন্ট্যাক্টে ছিল।